امام زمن نے اپنا نائب امام زین العابدین کو بتایا اور کہا کہ بیٹا میرے بعد بہت دکھ سہو گے، قافلے آل ابا کے تم رہبر و سالار رہو گے، ان کو سنبھال کر مدینے لے جانا۔ اور تم نے سب دیکھا ہے، تم نے سب دیکھا ہے، جب نانا کے پاس پہنچنا ساری داستان سنانا۔ چلنے لگے، زینب سیدہ نے کہا بھیا رکو، ایک گٹری کھولی، گٹری کھول کر کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، دوپٹہ نکال کر کے کہا ایسے پہچانتے ہو، ایسے پہچانتے ہو؟ بھائی بہن زاروں قطار رونے لگے۔ نبی پاک کا نواسا تیروں سے چھلنی ہوا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، جیسے گھوڑے سے امام پاک زمین پہ تشریف لائے۔ عاشورہ کا دن تھا، ظہر کا وقت۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ سینے سے لگایا، اپنا جانشین بنایا۔ امام زمن نے امام زمن نے اپنا نائب امام زین العابدین کو بتایا اور کہا کہ بیٹا میرے بعد بہت دکھ سہو گے، قافلے آل ابا کے تم رہبر و سالار رہو گے، ان کو سنبھال کر مدینے لے جانا۔ اور تم نے سب دیکھا ہے، تم نے سب دیکھا ہے، جب نانا کے پاس پہنچنا ساری داستان سنانا۔ نانا سے میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جس حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر تم نے حسین کو پالا تھا، اس حسین نے کندھوں پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ پوری داستان سنانا، نانا کو سلام کہنا، ماتم نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنا، صبر سے کام لینا، یہ وصیتیں کی۔ چلنے لگے، زینب سیدہ نے کہا بھیا رکو، ایک گٹری کھولی، گٹری کھول کر کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، دوپٹہ نکال کر کے کہا ایسے پہچانتے ہو، ایسے پہچانتے ہو؟ بھائی بہن زاروں قطار رونے لگے۔ ہاں امی کا دوپٹہ ہے نا، شب وصال امی نے یہ دوپٹہ مجھے سونپا تھا، کہا تھا زینب کربلا میں جانا تو اسے ساتھ لے جانا، میرا حسین جب اکیلا بچے گا کوئی نہیں ہوگا، میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا تاکہ حسین یہ سمجھے کہ وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہا ہے۔ جس بیٹے کے سر پہ ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بھیا یہ دوپٹہ اپنے کندھوں پہ رکھ لو۔ بی بی کا دوپٹہ کندھے پہ رکھا۔ سیدہ سے امام نے فرمایا مجھے پتا ہے بہت دکھ اٹھاؤ گی۔ زینب نے اپنے بھائی کو الوداع کہا۔ بیویوں نے آخری مرتبہ اپنے سہاگ کو، اجڑتے ہوئے سہاگ کو سلام کہا۔ استاذ زمن حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت سہاگ اجڑ رہا ہے۔ بیبیاں حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی ہے، دونوں بہنیں زینب اور ام کلثوم روتے روتے بے حال ہیں۔ ایسے میں امام نکلتے ہیں، سکینہ لپٹ جاتی ہے، لپٹ کے کہتی ہے بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ بھی جا رہے بابا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بھی موت کا جام پینے جا رہے ہیں بابا؟ امام نے کہا ہاں بیٹی، جس کے سب ختم ہو جائیں پھر وہ موت کا جام نہ پیے تو کون بھی کیا پیے؟ معصوم سی سکینہ نے کہا بابا آپ ایک کام کریں نا، ہمیں وہاں جانے سے، آپ میدان میں جانے سے پہلے ہم سب کو نانا کے شہر میں بھیج دیجئے تاکہ ہم لوگ ظلم سے بچ جائیں بابا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد وہ ہمیں تماچے ماریں گے، ہمارے خیمے لوٹیں گے بابا، وہ ہماری چادریں لوٹیں گے۔ امام نے کہا بیٹی تم جو کہہ رہی ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، لیکن میری بیٹی نانا کا دین آواز دے رہا ہے، تمہارے چہرے پہ تماچے تو دیکھ سکتا ہوں، نانا کے دین کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کے بیٹی کو سہارا دیا، سیدہ زینب کے پاس کیا اور پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔
मौरखीन ने लिखा है वो घोड़ा इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से संभाल कर लाए थे, उस घोड़े को अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को अता किया था। हुसैन करबला में इस घोड़े पे बैठे, ये भी मौरखीन ने लिखा है, ये भी है। कुछ लोग कहते हैं ऊँटनी पे बैठे थे, अलग अलग रिवायतें, लेकिन ये रिवायत मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है कि नाना के घोड़े पे बैठे। तो ज़ैनब ने कहा भैया हमारे ख़ानदान की रीत है कि जब कोई जंग में जाता है तो उसकी रिकाब थामी जाती है और उसको अलविदा किया जाता है। आज तो कोई मर्द ही नहीं बचा जो तेरी रिकाब था। मेराज पे नाना गए, सवारी पे बैठ रहे थे तो जिब्रील ने रिकाब थामी। नाना अली जाते थे तो हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रिकाब थामते थे। अब हुसैन जा रहा है, अफसोस जहरा के जाए की रिकाब थामने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन घबराना नहीं हुसैन, अभी तेरी बहन जिंदा है। ज़ैनब तेरी अजमत को सलाम, तूने मर्दों से बड़ा किरदार अदा किया है, तूने मर्दों से बड़ी हिम्मत दिखाई है, तू अली की बेटी है, तूने अली की बेटी का बेटी होने का हक अदा किया है तूने। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की जमीन पर कि अगर हमें कोई ताना देता है कि आपके यहां बेटी सिर्फ बर्तन धुलने वाली और झाड़ू देने वाली है, मैं कहूंगा तुमने दूसरी बेटियां देखकर यह समझा है। अगर तुम ज़ैनब को पढ़ लेते तो कम से कम ये ताना तुम मुसलमानों को कभी ना देते कि बेटी घर में झाड़ू और बर्तन करने वाली जात का नाम है। हमारे यहां बेटी ज़ैनब है। ज़ैनब, अगर एक ज़ैनब का किरदार पेश कर दूं, ज़ैनब क्या है? करबला से हुसैन की पुश्त की रीढ़ की हड्डी बनकर चलने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन के आंसू पोंछने वाली को ज़ैनब कहते हैं, हुसैन की निकाब थामने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन जब हौसला गोया के हारने लगते हैं उसको हौसला देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। चादरें छिन जाने के बाद भी आबरू के तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। और फिर जिंदान के अंदर खड़े होकर बाप के लहजे में खुतबा देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। बड़े बड़े मर्दों को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हाथ में हथकड़ी आने के बाद भी लोगों को इस्लाम की जुर्रत अता करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। आंखों में आंखें डाल के बात करके इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। यजीद जैसे चर्ब ज़बान पलीद को लाजवाब कर देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन के बाद हाथ में खंजर लेकर अहले बैत को तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। नेज़े पे भाई का सर देख करके सब्र करने वाली को ज़ैनब कहते हैं। अहले बैत की आबरू को तहफ्फुज़ देने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हुसैन करबला मैदाने मदीने से निकलकर करबला आए, करबला रुक गए हुसैन, लेकिन सालारे काफिला मदीने से बनकर ज़ैनब निकलती है और सालारे काफिला बनकर मदीने मुनव्वरा तक काफिला पहुंचाती है। हुसैन की बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी है, लेकिन ज़ैनब ने वो सदमे सहे हैं इसलिए कि हुसैन रास्ते में रुक गए। घर तक जो पहुंचाती है उसी को ज़ैनब कहते हैं। नाना तक जो करबला की दास्तान सुनाती है उसी को ज़ैनब कहते हैं। इस्लाम की अमानतों को जो घर तक ले जाती है उसे ज़ैनब कहते हैं। खैमे में हुसैन के घर के खैमे में सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन नहीं जल रहे थे, इमामों का बाप जल रहा था या इमामत जल रही थी। उस इमामत को कंधे पे उठा के लाने वाली को ज़ैनब कहते हैं। किसी ने इतना बड़ा काम न किया जितना काम अली की बेटी ने किया है। अगर ज़ैनब ने एक ज़ैनुल आबिदीन को न बचाया होता तो दुनिया ने न ज़ैनो बाकर को देखा होता, न जाफर को देखा होता, न मूसा कासिम को देखा होता, न अली रज़ा को देखा होता, न तकी को देखा होता, न नकी को देखा होता, न हसन अस्करी को देखा होता, न अब्दुल कादिर
जिलानी को देखा होता, ना मोइनुद्दीन अजमेरी को देखा होता, ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा होता, ना निजामुद्दीन को देखा होता, ना शाह बरकतुल्लाह को देखा होता, ना वारिस देवा को देखा होता, ना आले रसूल अहमदी को देखा होता, ना मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी को देखा होता, ना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन को देखा होता, ना अली हुसैन अशरफी को देखा होता, ना मेहंदी को देखा होता। सारे सैयदों को एक ज़ैनब जिंदगी दे रही है। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब को खिराज पेश करूं तो किस मुंह से करूं? एक औरत ने नबी की सारी नस्ल को हयात नौ अता कर दिया है। एक औरत ने, हमारे यहां औरत ये है, हमारे यहां औरत ये है। अब्दुल कादिर जीलानी हमारे दीन की हक्कानियत की दलील है, लेकिन वो भी तो हसनी हुसैनी सैयद है। मोइनुद्दीन अजमेरी भी तो हुसैनी हसनी, ये सैयदों को जिंदगी मिली है ज़ैनब की वजह से, ज़ैनब की हिम्मत की वजह से। पता चला एक औरत हिम्मत कर ले, एक औरत हिम्मत कर ले। वक्त हो गया है, मैं शहादत जल्दी से पढ़ दूं। सैयदा ने कहा तेरी बहन अभी हयात है। इमाम को सवार किया, इमाम मैदान में गए, इमाम ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद इमाम ने फरमाया अब भी दीन की तरफ आओ। हुसैन को जान से प्यार नहीं, हुसैन को नाना के दीन से प्यार है। अब भी दीन की तरफ आओ, मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। अली अकबर का खून माफ करूंगा, कासिम का खून माफ करूंगा, अली असगर का खून माफ करूंगा। मेरे नजदीक मेरी औलाद के खून से बढ़ के अल्लाह का दीन है। अगर अब भी तुम दीन के हामी बन जाओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन यजीद को छोड़ दो। यजीद शराबी है, यजीद दीन का मजाक उड़ाने वाला है, यजीद शरीयत मिटाने वाला है, छोड़ दो यजीद को, छोड़ दो। लेकिन उन बदबख्तों ने कहा हुसैन देर न करो, वक्त तो बहुत हो चुका है, देर मत करो इमाम की तरफ। वो आए, इमाम लड़ते रहे, इमाम फुरात पर पहुंचे। शेर खुदा का शेर झपट रहा था, लड़ रहा था। फुरात पे पहुंचे, जैसे ही हाथ में पानी लिया पीछे से आवाज आई हुसैन तुम्हारे खैमे लूटे जा रहे हैं। इमाम ने पानी छोड़ा, अल्लाह को ये मंजूर था। खैमों की तरफ गए तो पता चला कि झूठ बोला गया। अलबत्ता इमाम फिर मैदान में आए, लड़ते इमाम अली मकाम को चारों तरफ से घेर लिया गया और इतने जख्म आए। बाज लोग कहते हैं 73 जख्म आए, बाज कहते हैं 134 जख्म आए। नबी पाक का नवासा तीरों से छलनी हुआ, घोड़े से ज़मीन पे आया। जैसे घोड़े से इमाम पाक ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। आशूरा का दिन था, ज़ोहर का वक्त था, पूरा वजूद खून से लहू लहान था। इमाम जैसे ही घोड़े से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, जो मिंबर के करीब डगमगाता था तो रसूलुल्लाह खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरकर संभाल लेते थे। जब वही हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए होंगे तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरी होगी, आका के दिल पर, बीबी ज़हरा पाक के दिल पे क्या गुजरी होगी। जैसे ज़मीन पर आए, इमाम अली मकाम ज़मीन पर गिरे और फिर उसके बाद जो है लोग आए इमाम का सर काटने के लिए, हाथ काँप गए। इमाम ने फरमाया रुको, ज़ोहर का वक़्त हो चुका है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। शिमर सीने पे बैठ गया, तलवार उठाई और इमाम को जैसे कत्ल करने लगा। इमाम ने कहा ज़ोहर का वक़्त हो गया, नमाज पढ़ लेने दो, नमाज के बाद फिर जो चाहना कर लेना। इमाम जैसे नमाज की नीयत करते हैं और फिर सर सजदे में रखते हैं। उन बदबख्तों ने सर सजदे से उठाने और नमाज मुकम्मल करने का भी इंतज़ार नहीं किया। सन्नान बिन अनस ने, शिमारे लहीन ने, इस तरीके से और भी बदबख्तों ने, सब ने मिलकर एक तलवार से इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत जो दुल्हन बन करके खड़ी थी वो दौड़ती हुई आई और इमाम से गले लग गई। जैसे इमाम की शहादत हुई, इमाम का सर तन से जुदा हुआ, उसी वक्त सूरज को ग्रहण लग गया। दिन में
تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سب صاف ہو گیا، اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔ اب کربلا کے بعد کی داستان، آئندہ سال اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو ہم 11 کو بھی پروگرام انشاءاللہ کریں گے۔